We are reading the essay The March of Mind, written by Dr. S. Radhakrishnan. We have read that Dr. Radhakrishnan is talking about the condition of India after independence. He says, I may remind you of a statement made by a distinguished visitor to this country that India would rather die or commit suicide than submit to pressure or intimidation from any quarter. Here he is reminding the statement that is made by a visitor to our country, and that visitor said that India would rather die or commit suicide than submit to pressure or intimidation from any quarter. Intimidation is an action of frightening someone. So he said that India will not submit to any pressure or any intimidation. यानी भारत जो है वो किसी के सामने झुकने की बजाय सुसाइड कमिट कर लेगा या ख़त्म हो जाएगा. That may be so or may not be so. At least we have won the esteem of other nations. लेकिन कम से कम हमने दूसरे राष्ट्र के सामने अपने रिस्पेक्ट को बचाया है. But what we have done is very little compared to the vast undone. But what has been done by us, जो कुछ हमने किया है आज तक, वो अगर हम उसका कंपैरिजन हमने जो कार्य नहीं किए उनसे करें तो हमारा किया हुआ काम जो है वो बहुत कम है. What we have done is very little if it is compared with the things which we have not done. Political freedom has given us the great opportunity and the sacred responsibility of building up a new India, free from want and disease, rid of the curse of the caste and the outcast, where women will enjoy the same rights as men, and where we shall live at peace with the rest of the world. After independence, we got political freedom. आज़ादी के बाद हमें एक राजनीतिक स्वतंत्रता मिली और a country became democratic country. And this political freedom gave us opportunity as well as responsibility. इस political स्वतंत्रता के बाद हमें अवसर भी बहुत मिले, साथ ही साथ हमें एक जिम्मेदारी भी मिली that we have to make up a new India, कि हम एक नए भारत का निर्माण करना है. ऐसा भारत जो कि फ्री फ्रॉम वांट एंड डिजीज़, यानी किसी तरह की कमी वहाँ ना हो, कोई बीमारी ना हो, rid of the curse of the caste and the outcast, और जहाँ जातिवाद और छुआछूत ना हो, where women will enjoy the same rights as men, and where we shall live at peace, और जहाँ हम शांति से रह सकें with the rest of the world. The inspiration of such an India should sustain you in your work ahead. Here Dr. Radhakrishnan is saying to all the scholars, all the degree holders, to take an inspiration for such an India, कि इस तरह के भारत के निर्माण करने की जो प्रेरणा है वो उनको सपोर्ट करेगी उनके आने वाले वर्क में. We are living through one of the great revolutionary periods in human history. The revolutionary efforts spread over several centuries in other parts of the world are concentrated in a short span of time in our country. Here he is talking about the period after independence in India, कि भारत में आज़ादी के बाद जिस पीरियड के दौरान लोग गुज़र रहे थे, जिस टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस किया, दैट टाइम इज़ कॉल्ड ए ग्रेट रेवोल्यूशनरी पीरियड्स. और दूसरे अगर वर्ल्ड के पार्ट्स में देखा जाए तो ये जो रेवोल्यूशनरी एफर्ट्स है ये काफ़ी सेंचुरी तक चले, लेकिन हमारे जो देश है इंडिया में एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही कंसंट्रेट हो गए हैं इतने सारी प्रॉब्लम्स. हियर ही इज़ टॉकिंग अबाउट मैनी चैलेंजेस. ही फर्दर सेज वी आर फेसिंग ए मैनी साइडेड चैलेंज, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, कि हमें बहुत सी तरह के चैलेंज जो है उनका सामना करना है, राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक. एजुकेशन इज़ द मीन्स by which the youth is trained to serve the cause of drastic social and economic changes, and the changes which we are going to face
उन चेंजेस को फेस करने का जो एकमात्र मीन है, साधन है, दैट इज़ एजुकेशन। कि एजुकेशन ही वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने यूथ को ट्रेन कर सकते हैं कि कैसे वो आने वाले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का सामना करें। नेशंस बिकम बैक नंबर्स इफ़ दे डू नॉट रेकन विद द डेवलपमेंट ऑफ द एज। राष्ट्र जो है वो पिछड़ जाते हैं अगर इफ़ दे डू नॉट रेकन, इफ़ दे डू नॉट थिंक विद द डेवलपमेंट्स ऑफ द एज, यानी युग की विकास के साथ, युग की डेवलपमेंट के साथ अगर हम नहीं सोचते हैं तो हम पिछड़ जाते हैं। सो हियर डॉक्टर राधा कृष्ण इज सेइंग दैट द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय आवर कंट्री, द only solution for these problems is in education. By education we can face all these problems. He further says, the industrial growth of our country requires a large number of scientists, technicians and engineers. कि जो औद्योगिक तरक्की हुई है हमारे देश की, उसके लिए ज़रूरत है साइंटिस्ट की, टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स की। The rush in our universities for courses in science and technology is natural. और उसी वजह से हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें टेक्नोलॉजी और साइंस के जो कोर्सेज हैं उनमें रश आना स्वाभाविक है। मैन ट्रेंड इन दीज प्रैक्टिकल कोर्सेज हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल। और जो व्यक्ति इन प्रैक्टिकल कोर्सेज में ट्रेनिंग ले रहे हैं वो हेल्प करेंगे एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। दे ऑल्सो होप टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट ईजिली। और वो आशा भी कर रहे हैं कि उनको आसानी से रोजगार मिले। टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू अर्न ए लिविंग इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। अर्थकारी साविद्या। एजुकेशन का एक फंक्शन ये भी है कि वो लिविंग लाइवलीहुड जो है उसमें हमारी हेल्प करे, स्टूडेंट्स की हेल्प करे। अर्थकारी साविद्या यानी विद्या ऐसी हो जो कि अर्थकारी हो। दिस इज़ अ श्लोक टेकन फ्रॉम महाभारत। महाभारत में विदुर ने बताया है कि एजुकेशन का एक फंक्शन ये भी है, विद्या का एक कार्य कि वो अर्थकारी हो, यानी हमें लिविंग के लिए लाइवलीहुड अर्न करने में हेल्प करे। आई डू नॉट बिलीव दैट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल स्टडीज़ आर डिवॉइड ऑफ मॉरल वैल्यूज़। मुझे ये नहीं लगता कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा जो है वो नैतिक मूल्यों से वंचित होनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो दैट मॉरल वैल्यूज़ आर नॉट प्रेजेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस इज़ बोथ नॉलेज एंड पावर। साइंस जो है वो दोनों ही चीज़ है, ज्ञान भी और पावर भी, ताकत भी। इट हैज़ इंटरेस्ट एज वेल एज यूटिलिटी। इसमें इंटरेस्ट भी है, साथ ही साथ इसकी यूटिलिटीज़ का यूज़ भी है। It is illuminating as well as fruitful. Illuminating means it provide insight और clarity और understanding कि साइंस जो है वो illuminating है as well as fruitful also. It demands discipline, devotion to the pursuit of truth. The study of science is based on facts. तो साइंस जो है वो डिमांड करती है कि एक डिसिप्लिन के साथ हम सच्चाई के पीछे चलते रहें। It develops in its votaries an attitude of tolerance, open-mindedness, freedom from prejudice and hospitality to new ideas. और विज्ञान साइंस जो है वो अपने वोटरीज़ में, अपने वर्शिपर्स में, अपने स्टूडेंट्स में एक एटीट्यूड क्रिएट करता है, डेवलप करता है। और वो एटीट्यूड है टॉलरेंस का, सहन शक्ति का, ओपन माइंडेडनेस का, फ्रीडम फ्रॉम प्रिजुडाइस। हर तरह के पूर्वाग्रह से विज्ञान के विद्यार्थी जो है वो फ्री रहते हैं। एंड दे वेलकम न्यू आइडियाज़ ऑल्सो। साइंस रिवील्स टू अस द इनएग्जॉस्टिबल रिचनेस ऑफ द वर्ल्ड, इट्स अनएक्सपेक्टेडनेस, इट्स वंडर। विज्ञान जो है हमारे सामने लेके आता है ये जो संसार है इसकी रिचनेस को, एक वर्ल्ड, इसकी बहुत सी चीज़ें जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं करते, वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है वो विज्ञान के द्वारा हमें दिखती है, पता चलती है। इट्स वंडर। और वर्ल्ड के जो आश्चर्य हैं वो सारी चीज़ें हमें विज्ञान जो है उनसे अवगत कराता है। नेवरदलेस दीज क्वालिटीज़ आर डेवलप्ड बाय साइंस इंसिडेंटली एंड नॉट इमीडिएटली। और ये जो क्वालिटीज़ हैं
quality of tolerance, open-mindedness, freedom from prejudice, hospitality to new ideas. All these qualities are developed by science incidentally, not immediately. एकदम से डेवलप नहीं होंगी. It does not directly deal with the non-intellectual aspects of human nature. साइंस जो है वो डायरेक्टली डील नहीं करता ह्यूमन नेचर का जो नॉन इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है उससे. द इकोनॉमिक मैन हु प्रोड्यूसेस एंड कंज्यूम्स, द इंटेलेक्चुअल मैन, द साइंटिफिक मैन इज़ नॉट द होल मैन. इकोनॉमिक मैन वो है जो कि प्रोड्यूस भी करता है और कंज्यूम भी करता है, द इंटेलेक्चुअल मैन. द साइंटिफिक मैन इज़ नॉट द होल मैन. साइंटिफिक पर्सन जो है वो कंप्लीट पर्सन नहीं है. इसका रीज़न इन्होंने आगे बताया है. द डिसप्रपोर्शनेट एम्फेसिस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन कोजिंग कंसर्न टू थिंकिंग मैन ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो डिसप्रपोर्शनेट एम्फेसिस विज्ञान और तकनीकी पर दिया जा रहा है वो पूरे संसार में एक चिंता का विषय बन गया है. The great crimes against civilization are committed not by the primitive and the uneducated, but by the highly educated and the so-called civilized. Here Dr. Radhakrishnan is saying the great crimes against civilization are not committed by uneducated people. कि जो बड़े बड़े क्राइम्स हुए हैं वो प्रिमिटिव और अनएजुकेटेड लोगों द्वारा नहीं किए गए, बल्कि हाईली एजुकेटेड और जिन लोगों को हम सभ्य कहते हैं उनके द्वारा वो क्राइम्स किए गए हैं. वन रिकॉल्स द सेइंग दैट द मोस्ट सिविलाइज्ड स्टेट इज़ नो फर्दर फ्रॉम बार्बरिज्म देन द मोस्ट पॉलिश स्टील इज़ फ्रॉम रस्ट. हियर डॉक्टर राधाकृष्णन हैज़ यूज्ड एन एनालॉजी. ही हैज़ कंपेयर्ड द स्टेट विद स्टील, कि जैसे बहुत ज़्यादा पॉलिश स्टील है वो भी रस से दूर नहीं रह पाता, उस पर भी जंग लग जाता है. उसी तरह से बहुत ज़्यादा सभ्य जो राज्य हैं, स्टेट हैं, वो भी बारबेरिज्म यानी क्रूएलिटी से, क्रूरता से दूर नहीं रह पाते हैं. साइंटिस्ट हैव नाउ फाउंड मीन्स बाय विच ह्यूमन लाइफ कैन बी वाइप्ड ऑफ द सरफेस ऑफ दिस प्लेनेट. वैज्ञानिकों ने ऐसे संसाधन खोज दिए हैं जिनके द्वारा इस मानव जीवन को इस प्लेनेट के सरफेस से साफ किया जा सकता है. Here, Dr. Radhakrishnan is talking about atomic bomb, atomic energy. Of the many problems that now face the leaders of the world, none is of graver consequence than the problem of saving the human race from extinction. और आज के सामने जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं उनके सामने जो बहुत सी प्रॉब्लम हैं उनमें सबसे ज़्यादा भयानक प्रॉब्लम जो है वो यही है कि कैसे मानव जाति को विलुप्त होने से बचाया जाए. स्ट्रगलिंग एज वी आर विद द फेटफुल हॉरिजन ऑफ एन एटॉमिक एज, द अचीवमेंट्स ऑफ साइंस हैव इंड्यूस्ड इन आवर माइंड्स ए मूड ऑफ डेस्पेयर, मेकिंग अस फील होमलेस एग्जाइल्स कॉट इन ए ब्लाइंड मशीन. और आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं. वी आर विद द फेटफुल हॉरिजन ऑफ एन एटॉमिक एज, वी आर लिविंग इन एन एटॉमिक एज. द अचीवमेंट ऑफ साइंस हैव इंड्यूस्ड इन आवर माइंड्स, जो विज्ञान की उपलब्धियां हैं उन्होंने हमारे माइंड में एक डेस्पेयर की, एक निराशा के मूड को क्रिएट कर दिया है और मेकिंग अस फील होमलेस, और उसकी वजह से हम अपने आप को एग्जाइल में फील करते हैं, होमलेस फील करते हैं. एंड इट फील्स दैट वी आर कॉट इन ए ब्लाइंड मशीन. We are standing on the edge of an abyss and perhaps even sliding towards it. और ऐसे लगता है कि हम किसी खाई के किनारे पर खड़े हैं और शायद हम उस खाई में गिरते जा रहे हैं. The Prime Minister of England in a recent speech contemplated. इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी अभी रिसेंट की स्पीच में इस बात पर चिंता जताई. उन्होंने कहा, We and all nations stand at this hour in human history before the portals of supreme catastrophe and measureless reward. आज हम और पूरा संसार खड़े हैं इस समय मानव इतिहास के उस पड़ाव पर जिसमें एक साइड में तो हमारे सामने बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ है
और दूसरी साइड में बहुत सारे रिवॉर्ड है, यानी एक साइड में विनाश है और दूसरी साइड में हमारे पास मेजरलेस रिवॉर्ड्स हैं, इनाम हैं. So here he is talking, he refers to the uses and disuses of science, कि विज्ञान जो है उसकी पॉजिटिव अगर यूज़ करें तो हमारे सामने मेजरलेस रिवॉर्ड्स हैं, एंड इफ़ वी विल यूज़ साइंस इन अ नेगेटिव वे देन इट इज़ रियली कैटास्ट्रॉफिक, तो ये वास्तव में विनाशकारी है.